Hi, everyone. Greetings for the day from Edu-Astro. Once again, we are in front of you with another very interesting series. And this series is called the Enlightenment series. This series is totally based on the personal experiences of our people whom we know, who have experienced the enlightenment in their lives through different ways and forms. And we are going to discuss a lot about that in the upcoming series, in the upcoming episodes too. In today's episode, we have a very esteemed person in front of us. He is one of the founders of Edu-Astro, and his name is Nilesh. And Nilesh ji is a very senior guy in this entire field, not only in terms of the spirituality, but in terms of astrology too. He's a fantastic astrologer. You can see by his face that though his hair is white, but his face does not tell you the age. So you can very well understand the things what he has gone through in life and the way he has actually used spirituality. That is the key for his youth, which is reflecting on his face. And with that, Nilesh, welcome to the show. Today, it's a very pleasant experience that we are starting off this show where we are going to talk about a lot of good things which can help people to improve their lives. Thank you very much for being on the show, Nilesh ji. You want to say a few words? Thank you so much, Kabir ji. Thank you so much. So Nilesh ji, before even I go forward and ask you to, start off about your journey, we want to tell the viewers that there are many forms of spirituality. There are many ways you can achieve spirituality. And in today's session, we are going to specifically focus on one aspect, and that is meditation. But before we move forward, Nilesh ji, over to you. Please do tell us something about yourself to all the viewers, and we can take it on from there. Thank you, Kabir ji, for short and sweet introduction. My journey in the meditation field, or you can say like the spirituality or anything else, whatever the words you can use for this field, it started like more than like 25 years back. I was always curious about inner journey. What is meditation? How you proceed? What is yoga? What is pranayam? How you can do? And I'm always in search of that thing. So I have like inner hunger for that, and I started my meditation the practices like 20 years before. And as I progress, but slowly, I thought that what I am doing by myself is not correct. So I need some kind of guidance from the guru or anybody who already reached that level and who can guide me through this process. But so I was doing that by myself, but one day suddenly I met the person who is a Osho's disciple, and he just gave me some audio, one of the audio, and I heard that. And once I heard on that day, something happened and some transformation happened within me. And I started that, I found that Osho's teaching and Osho's reading and Osho, what he says is this is my station to understand, to know what, and to go deeper in this subject, which is people call meditation or dhyan or spirituality, So I don't want to go more about myself, but I have been practicing from last 20 years, not even a single day
I miss my ध्यान, which मैं meditation वर्ड्स ज्यादा यूज करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो मेडिटेशन वर्ड्स है ना, वो बहुत ऊपर ऊपर उथला उथला होता है. once you say something ध्यान, so ध्यान के शब्द में एक एनर्जी है, एक गहराई है, you know. So meditation, हम people, सब लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब ये बात आती है ध्यान करने की, तो कुछ अलग ही एक एनर्जी होती है वो ध्यान. तो मैं मेडिटेशन की जगह पे ध्यान शब्द यूज करना करूंगा पसंद ज्यादा. So let's start with the subject. ध्यान क्या है, मेडिटेशन ध्यान क्या है. सो ध्यान क्या है, और ध्यान में जाने के लिए हम how we proceed. सो पहले तो ये एक बात समझ लो कि ध्यान, मेडिटेशन इज नॉट अ डूइंग प्रोसेस, इट्स अ हैपनिंग प्रोसेस, इट्स अ आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, राइट. तो यहाँ अभी ये एक वर्ड है, ये मैंने सेंटेंस बोला, मेडिटेशन इज अ हैपनिंग प्रोसेस, नॉट अ डूइंग प्रोसेस. भी हैपनिंग और डूइंग में बहुत बड़ा फर्क है. डूइंग मीन्स हम लोग जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमको वहीं से शुरू करना पड़ता है, या कुछ करेंगे, कुछ विधि करेंगे, कि कुछ मंत्र करेंगे, या कुछ किसी फॉर्म का हम लोग किसी फॉर्म की हम लोग हेल्प लेंगे, वहां से हम शुरू करेंगे. तो शुरू तो हमको वहीं से करना पड़ेगा. सो विच इज मेडिटेशन इज डूइंग, हम लोग वहां, लेकिन वो डूइंग करते 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 एक दिन हैपनिंग होगी. सो वो हैपनिंग होने के लिए यू हैव टू बी रियली पेशेंस. आपको जब भी आप ध्यान शुरू करो, तो आपको ध्यान शुरू करते ही ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन वापस शुरू किया वापस. यू नीड टू हैव, भले आप दिन में 15 मिनट दो अपने लिए, लेकिन 15 मिनट भी आपको देने रोज जरूरी है, रोज. क्योंकि वो 15 मिनट होते होते एक दिन 20 मिनट होगी, फिर 25 मिनट होगी, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसा होंगे. सो यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली, मैं आज से ही शुरू करूंगा 1 घंटा, क्योंकि वो प्रोसेस है. और रही बात हमारे माइंड की, तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि माइंड इज लाइक अ मंकी. उसको शांत बिठाना मतलब बहुत बड़ी चीज है. और हमको एक्चुअली माइंड को शांत बिठाना ही नहीं है, हमको माइंड के साथ कुछ करना ही नहीं है. हमको सिर्फ अपने मन को देखना है, कुछ भी नहीं करना है. उसको अपना खेल जो करना है उसको करना दो, हमको तो सिर्फ देखना है. सुपर सर. यहाँ पे ना मेरे को एक बात याद आ रही है. एक मूवी देखी थी जहाँ पे आई थिंक इट वाज जैकी चैन और समथिंग लाइक दैट. In that movie, these guys went to a mountain or something where people were doing exercises and meditation and all that stuff. So one of the person asked the other person, master or somebody, that what are you doing? And he said that I am standing still. I'm trying to be still. And the person said, that means you are doing nothing. So he said there is a very big difference between standing still, trying to be still, and doing nothing. The day you understand it, you would have reached a different level in your life. तो आपकी बात सुन के मेरे को exactly यही चीज समझ में आ रही है कि आपको meditation की शुरुआत करते करते, काम करते करते उस पे, then you go to a certain stage where it automatically starts happening. It becomes a part of your DNA. Am I correct in understanding that? Exactly correct. और Perfect. दूसरी बात, another most important thing is that when you start meditation, that doesn't mean that you have to leave your profession or your work करते करते यार बस हमको खाली यही करना है. See, what I ask from you people, or the people who's going to watch this, give 1 hour to yourself. Out of 24 hours you have to give 1 hour to yourself, not to others, just exclusively for yourself.
अगर 1 घंटा आप 23-24 घंटे में से अपने लिए दे दोगे तो बहुत है, काफी है। अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो, देन ग्रेजुअली गो। 5 मिनट, 8 दिन, 7 दिन, 5-5 मिनट दी, फिर दूसरे वीक में 10 मिनट कर दो, 15 मिनट कर दो। ऐसे करते करते उसको उसको ध्यान को एक बोझ नहीं बनाना है कि एक मेरे लिए कोई काम है। It's not like work, you know. You Yeah. have to be, you have to be doing like normal। जब भी आप प्रोफेशन में जॉब पे जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, या रोज ब्रश करते हो, या नहाते हो, धोते, बस उसी तरह से सहज, वेरी नेचुरल वे। उस वो ध्यान करना एक और वर्क नहीं, उसको जोड़ देना है साथ में। सो दैट इज लाइक द वे इट इज। उसको बोलते हैं हम सहज, सहज तरीके से, easily. easy। And the another thing I said the word, it is an art of ultimate relaxation। अभी जो वर्ड रिलैक्सेशन है ना, वो बहुत बड़ा है। ऐसा तो हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन मतलब ऐसे हम जनरली बैठे शाम को, संडे को चाय पी रहे, ऑफिस नहीं है तो पड़े बिस्तर पे रिलैक्स कर रहे, वो रिलैक्सेशन और आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। True. एक रिलैक्सेशन होता है हम बस ऐसा ही बैठे, एक रिलैक्सेशन होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मेरा हाथ है, मैंने हाथ को बेंच पे ऐसे रखा है। अभी वो हाथ को मैं इतने रिलैक्सेशन में ले जा सकता हूं कि मुझे पता ही नहीं चले मेरा हाथ यहाँ है। Yes. एक ये रिलैक्सेशन। एक मेरा हाथ ऐसे ही पड़ा है, मेरा हाथ को मैं फील कर रहा हूँ, वेट है उसमें, वजन है मेरे हाथ में, तो मुझे फील हो रहा है, वेट उसका फील हो रहा है। और वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही आलसू होके पड़ा है यार, ऐसे ही आइडियली पड़ा है। और एक रिलैक्सेशन का रीत ऐसी है कि जो हाथ पड़ा है, दिख रहा है आपको, फिर भी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि यहाँ मेरा हाथ है। So तो वो basically, what you रिलैक्सेशन meant to say is that relaxation as a word, which is very widely used in all things, has two different connotations. One is wherein you think you are relaxing, but actually you are not. And the other is where you are actually relaxing and you will never not be able to understand or feel that there is any weight behind the body or something like that. एग्जैक्टली। सो Yeah. सो ये ध्यान का ये बेस बनाने, ये रिलैक्सेशन तक, डूइंग से हैपनिंग तक जाने के लिए ये बीच में रिलैक्सेशन है। डूइंग करते करते करते, ध्यान करते करते करते, एक दिन ऐसा ऐसा मौका आएगा कि आप अपने आप चले जाओगे रिलैक्सेशन। सो ऑन दैट डे यू विल रियलाइज, वाओ, समथिंग, I'm not feeling myself, I'm weightless। That is लेकिन the true sense. लेकिन वो जो प्रोसेस है डूइंग से हैपनिंग का, और बीच में जो रिलैक्सेशन का ब्रिज है, वो अपने अपने आप हर एक इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड है। वो कितना भीतर से उसको कितनी आग है, कितना वो मोटिवेटेड है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ध्यान का मतलब वो उसका अल्टीमेट गोल मोक्ष या साल्वेशन नहीं है। ध्यान की जो जर्नी है वो इटसेल्फ इज अ मोक्ष, वो इटसेल्फ इज अ साल्वेशन, वो इटसेल्फ इज अ एंजॉयमेंट। कि आप वो चीज को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करो। सो 1 घंटा या 10 मिनट से आप शुरू करेंगे ना, तो वो 1 घंटा 10 मिनट आपके 22 के बाकी के जो 22 घंटा है ना, उस पर फैलने लगेगा धीरे 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 धीरे। The effects of this entire exercise and journey will automatically feature in the entire day. हाँ, तो ये एक दिन में होने वाला नहीं है। आप सोचो कि आज सुबह कल से मैंने ध्यान किया और मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ होने के लिए मत करो, यू हैव टू एंजॉय दैट। वो भूल जाओ सब।
मोक्ष की बातें तो बाद में भूल ही जाओ, वो कुछ है ही नहीं, बस यू हैव टू जस्ट एंजॉय द जर्नी ऑफ मेडिटेशन। तो उससे क्या होगा, जो द मोमेंट, जैसे आप प्रोफेशन में कुछ काम कर रहे हो, जैसे कोई आईटी प्रोफेशनल है, उसको प्रोग्रामिंग करने में कितना मजा आता है। तो जब ये प्रोग्रामिंग करता है, वो सोचता नहीं हो कि उसमें मुझे आनंद मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कितना एंजॉय करता है अपने जॉब को, वो खटाखट वो सब करते जा रहा है, करते जा रहा है। उसको उसको वो ऐसा नहीं लगता अभी बहुत थक गया हूँ, टायर, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा हूँ वहां पे। इसी तरह से अब इस बात पे सर मेरे को एक चीज दिमाग में आई। नाउ सी, there are so many activities we do in the entire day. There are so many thoughts which come to us in the entire day. Not only while being awake, you also are doing the same thought. You also have so many thoughts in your mind when you are sleeping too, right? Now, this entire journey of thoughts through your mind, it obviously will not let your mind rest. And if your mind is not at rest, then obviously you can't go ahead and get into the state of trance, which you were explaining, to experience the ultimate relaxation. Right. Now, with the stressful lives what we lead today, every person who leads a stressful life today, how can a person just take his mind off even for a few seconds, is the question. And most of them fail, most of us fail. So if that is the case, what can be done, or how should it be approached that we can even start off the journey? see, first of all, one thing you have to remember very clearly and keep it that in your mind very clearly, that you cannot keep quiet your mind. You cannot keep quiet your mind, because mind, मन का अपना स्वभाव है, माइंड हैज इट्स ओन नेचर। जैसे ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ स्वभाव, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिर्ची का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, तीखापन है ना, बिटरनेस, बिटरनेस है, बराबर। तो आप मिर्ची को बोलोगे कि आप अपना स्वभाव निकाल दो, हो सकता है क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। मिर्ची आप यूएस में बैठ के खाओगे, या इंडिया में बैठ के खाओगे, या अफगानिस्तान में कहीं भी बैठ के खाओ, मिर्ची का स्वाद तो वही होगा, तीखा ही होगा। शक्कर का स्वाद मीठा ही होगा। उसी तरह से मन का जो स्वभाव है, नेचर है, वो चलना है। मन रुक नहीं सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप मन नहीं हो। यू आर नॉट माइंड, यू आर वॉचिंग द माइंड। आप माइंड को देखने वाले हो, आप देख रहे हो उसको। सी, माइंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैकेनिज्म, very beautiful mechanism, but if you know how to use it, that's an art, how to use it. आज हम एक्सटर्नल माइंड के जो यूज की वजह से जो इस दुनिया में इतना सारा जो रिवोल्यूशंस हुआ है, इतनी सारी जो शोध होती है, इतने सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, these are the result of the external mind. तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मन खराब। अरे मन का बहुत उपयोग है, माइंड से ही तो शुरू होगी जर्नी। यू कैन नॉट इग्नोर माइंड, बट यू हैव टू गो द वे द मेडिटेशन। ध्यान आपको हेल्प करता है कि आप मन से उस पार चले जाओ। मेक सेंस, मेक सेंस। होते हुए भी मन से, ध्यान की घड़ी में माइंड नहीं होता है। देखो, दो चीज, एक म्यान में दो स्वॉर्ड नहीं रह सकती, तलवार नहीं रह सकती है। करेक्ट। या तो ध्यान होगा या तो मन होगा। जब भी ध्यान घटेगा तभी मन नहीं होगा वहां। वहां देखने वाला कौन होगा? आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे ध्यान घट गए, कि मेडिटेशन, आई हैव एक्सपीरियंस द मेडिटेशन। द पर्टिकुलर दैट मोमेंट पे तो आप होते ही नहीं हो, तो कौन बोलेगा, किसको बोलेगा वहां पे?
Very बट true. वंस यू कम फ्रॉम दैट स्टेज, फिर आप अपने होश में आते हो, अपने शरीर में आते हो, अपनी जो 5 सेंसेस है उसमें आते हो, देन यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस, हाँ कुछ हुआ, And समथिंग that इज will be हैपेंड। like a fraction of a second, something like that. वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से शुरू होती है चीजें, Okay. लेकिन वो चीजें अभी अभी जैसे बोलते हैं ना कि बूंद जैसे ड्रॉप गिरती है पानी की, पानी की ड्रॉप गिरती है, नीचे कुछ वेसल होता है, तो एक एक बूंद करके उसमें जमा होती है ना। पहली बूंद जब भी गिरेगी तो वहां आपको कुछ वेसल में कुछ दिखेगा नहीं, True. लेकिन बूंद गिरती रही गिरती रही गिरती तो वेसल पूरा भर जाएगा। ध्यान भी उसी तरह है, ध्यान की बूंदे, अवेयरनेस की बूंदे, कॉन्शियसनेस की बूंदे, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेस पे, वो गिरती रहेगी गिरती है, वो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। वो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो अपने आप होते होते होता है, यू विल नॉट रियलाइज इवन, बट वंस जब भी एक दिन विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा ना, देन यू, अरे अचानक क्या हो गया, मैं पूरा बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये तो। और ऐसा नहीं कि Right. ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बड़ी बड़ी चीजों में ही होता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन छोटी छोटी चीजों से होता है। क्या आप एक, क्या आप समझो एक रेगुलर रोज 8 बजे सुबह उठते हो, अचानक धीरे धीरे आप 7 बजे उठने लगे, 6 बजे उठने लगे, तो जो 8 बजे से आप 6 बजे उठने लगे, वो क्या, वो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन? वो भी True. तो ट्रांसफॉर्मेशन है छोटे लेवल पे, लेकिन उसको हम, अब हमारा दिमाग में वो चीजें आते नहीं, ध्यान में नहीं आती ना वो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मुझे। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा नहीं कि बस एनलाइटनमेंट ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे लेवल्स है, वो Very धीरे true. धीरे धीरे हर एक चीज में आते हैं। तो हम मेन उस पर टॉपिक पे आते हैं कि ये जो ध्यान में हम उतरे कैसे, जाए कैसे, ध्यान कैसे करें। Right. अभी ध्यान, लोग बोलते हैं कि आंख बंद करते हैं मुझे अंधेरा ही दिखता है, या कोई मैं मंत्र करूं या कोई फॉर्म का करूं। मैं बोलता हूं अब आपको जिससे शुरू करना है वो करो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, और ये मैं लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि व्हेन यू डू मेडिटेशन, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ फॉर्म, डोंट डू एनी काइंड ऑफ मंत्र। आपको अलग से करना है करो, बट जब भी आप आंख बंद करते हो तो अंधेरा ही दिखेगा आपको। सो जस्ट जस्ट बी विथ डार्कनेस, मेक डार्कनेस योर फ्रेंड, क्योंकि गहराई, अंधेरा, अंधेरा बहुत बड़ी गहराई है। ये पूरे एक अस्तित्व में जैसे प्रकाश है वैसे अंधेरा भी है, True. उसको आप ना नहीं बोल सकते हो। Hmm. गहराई, अंधेरे अंधेरे में बहुत कुछ होता है। छोटा सा बीज अंधेरे में उगता है, Correct. वो भी प्रकाश में आके नहीं उगता। हम हमारा होना माँ के गर्भ में, वहां क्या अंधेरे होता में है, होता है. एब्सोल्यूट अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है ना, तो Correct. वही बीज वहां ग्रो होता है। तो वो अंधेरों का आप ऐसा मत समझो कि अब पहले ही दिन से आप ध्यान करने बैठोगे आपको प्रकाश दिख जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, while doing meditation, do not expect anything. I say anything means anything. Just do it. Just do it. बस वो जो करना है वो करना ही आपको भीतर से सिखाएगा। वो अंदर एक और एक बैठा है गुरु, सदगुरु भी है। Very true. आपको मिल जाए तो आपके भाग्य नसीब, लेकिन भीतर भी एक गुरु है जो Correct. आपको हमेशा करेगा, गाइड गाइड करते रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब, द थिंग इज दैट you somebody has to commit himself कि मुझे They have to करना है, commit. Yeah. और ऐसा नहीं कि मैं आज अभी टाइम है, अभी तो मैं यंग हूँ, नहीं, अभी अभी से, अभी नहीं तो नहीं, अभी नहीं, या So अभी like it's like सलमान खान ना कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता. That should या be the attitude, right? यू हैव टू कमिट। Yeah. देख बहुत जरूरी है, और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है।
कंटिन्यूटी, discipline, continuity. Yeah. कोई भी चीज करो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ध्यान के लिए आपको कुछ कुछ पढ़ रहे हो या कुछ आर्ट आर्ट का कुछ सीख रहे हो, अगर आप उसके साथ कंटिन्यूटी नहीं करोगे, उसको आप टाइम नहीं दोगे, तो वो चीज फूलेगी फलेगी नहीं ना। True. उसको उसको आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान का रास्ता ऐसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स रास्ता है, पता नहीं आगे क्या होगा आपके लिए, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल्स के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रास्ता है तो एक ही रास्ते से सब लोग जाएंगे। 1000 रास्ते हैं, 1000 जगह से आप जा सकते हो, लेकिन पहुंचोगे तभी एक ही जगह पे पहुंचोगे। तो मैं आपको 1000 रास्ते आप यूज करो, लेकिन अंत में आपको कहाँ आना है? मौन, मौन में आना है ना, Right. स्टिलनेस में आना है, Right. रिलैक्सेशन में आना है। अभी वो रिलैक्सेशन और स्टिलनेस के लिए आप कोई भी मीडियम यूज कर लो। शुरू में आप मंत्र से यूज करो, तंत्र से यूज करो, योगा से यूज करो, प्राणायाम से यूज करो, सब हर एक चीज ओपन है, सब कुछ अच्छा है करने के लिए, बट अंत में आपको बैठना तो पड़ेगा ना ध्यान में Right. उतरने के लिए, ऐसा तो नहीं Right. हो जाए। सो वो सब चीज करने की जरूरत है। क्या क्या होता है कि शुरू शुरू में आप अकेले से शांत नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि एनर्जी इतनी एक्टिव है, आपका माइंड इतना एक्टिव है ना, आपका माइंड कितना एक्टिव काम, कितना लाइक सिमलेसली काम करता है, दो थॉट्स के बीच में जरा भी गैप नहीं है, ओवरलैपिंग हो रही है थॉट्स की, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, आपको पता ही नहीं चलता तो दो दो थॉट्स के बीच में घुसे कहां से। वो जो ध्यान Very है true. ना, meditation is entering into the space between two thoughts. Correct. थॉट्स के बीच में जगह ही नहीं तो ध्यान कैसे होगा? सो वो जगह बनाने के लिए हमको थोड़ा अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, you don't have to leave anything, profession, family life, everything you have to enjoy, because you come here on this earth to enjoy everything. मैं Correct. किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक चीज को ऐड करने के लिए कर रहा हूं आपकी लाइफ में, True. जिस मेडिटेशन, Just ध्यान। meditate. अच्छा सर, एक बात बताइए. I got this point. Now this is pretty. It's coming out very clearly that if we start breaking our chain of thoughts by the introduction of something, either meditation or dhyan, whatever we call it, then that space will slowly start increasing, and we will start the journey of experiencing the relaxation and the stillness, right? Now when you did this, when you started your journey, what was your experience and how did you overcome your hurdles? So जैसे मैंने I said that I also started the same thing what I have said, that शुरू शुरू में तो पता ही नहीं था, यहाँ से वहां से सीखते थे, सभी जो जो भी अवेलेबल था कि ये मेडिटेशन की टेक्निक है, ये है, करते 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 सीखते थे, लेकिन उसमें कुछ गाइडेंस की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ से जाए। So one day suddenly, as I said, one of the my uncle, that we are doing satsang and all the religious activities, he has given me the audio cassette of Osho. I'm actually a disciple of Osho, so so everything what my journey is that I live in Osho, I drink in Osho, I sleep in Osho, everything. Osho is not a particular name. For me, the word meaning Osho is the existence. Existence. So you are not talking about the cult, you are talking about the entire experience and the being behind that thought. The existence. So yeah,
Sadhguru named Osho, but I took it that word as existence because he's everywhere. Right. ऊर्जा कहाँ नहीं है, कॉन्शियसनेस कहाँ नहीं है, वो मुझे बताओ. Everywhere. हर जगह पे. तो हम उससे बाहर तो हो ही नहीं सकते ना. True. जो Very भी true. कुछ करेंगे हम उसी में करेंगे. तो Yeah. ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आई, ये समझ में मुझे आई, और समझ के बाद चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो गई कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो अंदर ही उसी स्पेस के अंदर ही कर रहा हूँ ना. Yeah. और उसी स्पेस में मुझे जाना है. तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई? 10 मिनट में करता था. पहले मैं प्राणायाम करता था. जैसे पहले 1 साल मैंने ऐसे बैठने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि माइंड इतना एक्टिव होता है ना, तो आप 5-10 मिनट पे ज्यादा बैठ नहीं सकते हो. तो इसीलिए आपको ना पहले एक्टिव मेडिटेशन करने पड़ेंगे. कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी को बाहर थोड़ा फेंकना पड़ेगा, ताकि आपका फिजिकल बॉडी, फिजिकल शरीर शांति से बैठ सके एक जगह पे. तो मैं नहीं करता हूं. आपको जो मन में, जो एक्टिव मेडिटेशन आपको अच्छा लगे, जो भी जहां से भी आप सीखे हो वो मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन का मतलब क्या? उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, प्राणायाम होता है, फिजिकल एक्सरसाइजिंग होती है, कैथारसिस होता है. जैसे आप 10 मिनट प्राणायाम आपने किया तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, आपकी ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज हो गई, बराबर. फिर आपने कुछ नाच गाना किया, डजंट मैटर, आप पिक्चर के सॉन्ग भी लगाओ, भक्ति के सॉन्ग भी लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन नाचो कूदो. तो नाचने कूदने में आपकी एनर्जी का थोड़ा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वेस्ट एनर्जी, वो सब निकल जाएगी बाहर. जो एनर्जी आपको एक्सट्रोवर्ट लेके जाती थी ना, वो एनर्जी थोड़ी बाहर निकल जाएगी. तो आपकी फिजिकल बॉडी उस लेवल में आ जाएगी कि आप फिर शांति से 10 मिनट बैठ सको. तो उस टाइम तो पहले मन की बात छोड़ो, मन की बात दूसरे लेवल पे आओ. पहले तो आप फिजिकली देखो कि आप फिजिकली 10 मिनट बैठ सकते हो कि नहीं. Exactly my point, sir. Why did I ask this question? Because I have heard about meditation and this from a long time, and we have been working together from quite some time in astrology and doing a lot of things. Right? I have spoken to you about meditation. You have spoken to me about doing meditation. I tried doing it, right? But I realized that मैं 5 मिनट क्या 5 सेकंड नहीं बैठ सकता एक जगह शांति से. Sometimes kabhi khujli hogi, some itching will happen, some back pain will happen, some this. Sometimes I'll feel thirsty, sometimes I'll feel this. So then I understood that if I do not fix my body first, I will not be able to even start this journey. It is not possible, right? And you also mentioned once upon a time that pehle body theek karo, right? So that makes total sense. If I don't fix my body, if my energy, excess energy does not disseminate, I do not dissipate it across wherever I am sitting or working or doing anything, I will never be able to come to that state where I can sit for even 5 seconds or 5 minutes to start experiencing the journey. Right? And you are correct. मन तो बाद में आता है. पहले body के ऊपर आ जाओ. I have experienced this myself, physical. 5 मिनट बैठोगे, जब भी बैठोगे ना उसी टाइम पे खुजली आएगी, उसी टाइम पे ऐसा I have experienced it. पैर में कुछ होगा, यहाँ होगा, उसी टाइम पे. क्योंकि आप वो जो फिजिकल जो एनर्जी जो मैनिफेस्ट होना चाहती है ना, वो आप ऐसे ही एनर्जी को साथ में लेके बैठ गए हो. तो मेरा बोलने का मतलब है, ध्यान में बैठने से पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी किया करो. योगा किया करो, प्राणायाम किया करो, नाचो कूदो, गाओ. अगर आपको योगा प्राणायाम में रुचि नहीं है तो ओके, कोई भजन लगाओ, कोई म्यूजिक का लगाओ, 10 मिनट जोर से नाचो, खूब नाचो. तो वो नाचने में फिजिकल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो बाहर निकल जाएगी. फिर जब आप 10 मिनट बैठा, क्योंकि वो जब वो एनर्जी बाहर निकलेगी ना, तो बॉडी को थोड़ी थकान लगेगी ना. क्या आपने 10 मिनट, ऐसा नहीं कि 10 मिनट आप ऐसे ही नाचो, कुन हो गया. नो, फुल फोर्स से नाचो, या फुल फोर्स से प्राणायाम करो, फुल फोर्स से जो योगा का पोस्चर कर रहे हो
उसमें आप पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, तो वो स्ट्रेंथ जो आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हो ना, वो बाहर निकल जाए, उसको एक वे मिल जाएगा बाहर जाने का। This फिर is जब actually a very good tip for any beginner or anybody who has been trying to do and not been able to do it. It's an excellent tip. Use your body to disseminate the energy, and with that, get into this. फिर बैठो, फिर देखो। और ये भी, अगर आपको, आपके पास 15 मिनट का टाइम है ना, 5 मिनट नाचो कूदो डांस करो, जो भी कुछ करना है आपको करो। Yeah. 10 मिनट शांत बैठो, रोज Got करो it. ऐसा। वो ऐसे एक, पहले ऐसा ये 21 दिन करो। 21 दिन में आपको खुद को रियलाइज, आपको खुद को हो जाएगा, पता चलेगा। मैं देखो, मैं ना ये बोलता हूं कि अगर रिजल्ट ना आए कुछ करने पे, तो फिर वो यूजलेस है करना। Useless. Correct. आज के जेट एज में जब भी दुनिया भागी जा रही है, वी नीड रिजल्ट इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि मैं करूंगा और 2 साल या 15 साल या 20 साल बाद कुछ मेरे को रिजल्ट, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ये मैं इंस्टेंट आपको टिप दे रहा हूँ। And this is the best part of this entire conversation. See, anyways, we had decided that we are going to do a series of a lot of things which are coming up. But in today's episode, Nilesh the best thing which has come out is we are starting the journey of self-realization through one of the things which is widely known as meditation, but actually is dhyan. And you have given the tip or the secret behind starting the process. Take 21 days, do whatever you feel like in terms of your physical energy dissemination. After that, try to sit and do the dhyan. Slowly, after 21 days, immediately you will start seeing the results and moving to the next phase. This is amazing. और मैं अगर और एक चीज करता हूँ, अगर आपको जॉगिंग करना अच्छा लगता है, 10 मिनट जॉगिंग, 15 मिनट जॉगिंग करके आओ। नहाने धोने की फिक्र मत करना, आके 10 मिनट शांति से बैठ, या जॉगिंग जहां आप खत्म कर रहे हो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो 15-20 मिनट दौड़े, आपकी फिजिकल एनर्जी एक्टिव हो गई होगी, एनर्जी का थोड़ा जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर निकल गई होगी। एक जगह पकड़ लो कहीं पे, जॉगिंग करते हुए कोने में 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, एंड यू आर डन। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Now, this is the second tip. You don't need to actually fix a time in the day, whether you are jogging or exercising or dancing or walking or doing any physical activity. Just take out 5 minutes or 10 minutes after that, add it to that particular schedule, and you are done. This is very good. मैं इसी को तो कह रहा हूँ, सहज, वेरी नॉर्मल वे। इसमें कुछ ध्यान करने का मतलब थोड़ी कुछ वजन ले लेना अपने सर पे। वो कोई काम थोड़ी है कोई, वो तो अपने एंजॉयमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं ना ये। अभी एक्चुअली मेरे पास मैं 4-5 पेज के पॉइंट लिख के आया था, लेकिन अभी तो मैं दूसरे पॉइंट पे ही हूँ। मैं एग्जैक्टली आपसे यही बोल रहा था कि हम लोगों का इतना लंबा डिस्कशन चल गया है, अभी पॉइंट नंबर 2 या 3 पर ही हैं हम। तो आप सोचो कि अगर हम ये 4 पॉइंट बोलेंगे तो 4 कितने सारे एपिसोड तो हमारे इसमें निकल जाएंगे, which is very good actually, because see what is happening is the discussion between us करते करते इसमें से टिप्स निकल रही हैं जो हमारे व्यूअर्स को, all the people who are listening to the podcast or looking at the video or reading our blogs, they will all benefit somehow or the other, who want to start their journey and who are not able to do it, or they have started, they are able to do it but want to improve it. So it's basically for everybody, which is fantastic. So आज के सेशन का मेन पॉइंट तो आपने बता दिया. How would you want to take the next 5 minutes of the session and end it so that we can go ahead and start the next session from there and do and continue? So in short, इस सेशन का कंक्लूजन में एक सेंटेंस और वर्ड से निकालूंगा कि ध्यान या मेडिटेशन is a state of no mind. Meditation is a state of pure consciousness without any assumption, contain or belonging.
समझो, ये एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस में पूरा राज है इसके अंदर। ट्रू, वेरी ट्रू। इसी एक सेंटेंस की वजह से हम लोग जर्नी कर रहे हैं लाइफ टू बर्थ, बट इसी को जानने के लिए ध्यान, मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड। जहां ध्यान होगा वहां माइंड नहीं होगा, जहां जहां माइंड माइंड होगा होगा वहां ध्यान नहीं होगा। वहां ध्यान नहीं होगा। Exactly. So I'll just rephrase the entire thing. Like, if we are to understand ourselves and go deep into us to understand ourselves, we have to give some time to ourselves. And that start of that sometime is very important, but you can't have it till the time you figure out that the excess energy of the body goes out. You do the physical activities, maintain your normal life. No need to go to a jungle and do meditation. Maintain your normal life, disseminate your energies, sit in that process, start experiencing that thing for 21 days, and you will start seeing the results. And the end result, what we need to understand is that if there is dhyan or meditation, then the mind will not be there. And if there is mind, then the meditation or the dhyan will not be there. So this sums up everything. Fantastic. और एक चीज जाते जाते मैं कह देना चाहता हूं, कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग, ध्यान के बिना रह ही नहीं सकता। This I totally agree with you, sir. Because ये ध्यान के बिना, मैं समझाता हूँ, ये एक पहेली है, क्वेस्ट है। कोई भी आदमी ध्यान के बिना रह नहीं सकता, लेकिन वो ध्यान किस तरफ है वो जानना सबसे जरूरी। इम्पोर्टेंट चीज है, राइट? यू आर आपको वेरी डॉक्टर करेक्ट, सर। बनना है तो आपको डॉक्टर के अराउंड सब ध्यान, पढ़ाई में वहां ध्यान देना पड़ेगा। आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो वहां ध्यान देना पड़ेगा। आपको प्रोग्रामर बनना है तो वहां ध्यान तो देना ही पड़ेगा। Right. लेकिन And वो सब, this brings me to one of the most important aspects. We have spoken about dhyan, meditation, everything. So you finish first. I'll add that line. It just popped up into my mind. आप खत्म करो, आप जो बोल रहे थे। तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा, बराबर, लेकिन Yeah, वो ध्यान एक्सट्रोवर्ट है, correct. और एक ध्यान है जो इंट्रोवर्ट है। Introvert है। सो Very ध्यान true. ध्यान तो ध्यान में भी फर्क है। Yeah, ध्यान में फर्क है. And that's ध्यान exactly my point. So the thing which we term as dhyan, or loosely or outwardly we term as focus, that focus is required for everything in life, from everyone. Whatever we are trying to achieve, we need to focus there. Everywhere we keep on learning, you should have a focus, you should have a goal, you should have an objective, you should have a plan, execute, monitor, blah blah, all that stuff. So that focus is outwards, but what we are talking about, the dhyan, the focus, is the inward focus, and that is the starting point for this journey. देखो, ये You killed it, sir. है You ना, killed it. इतनी सारी कुछ चीजें, इतने ब्लेसिंग्स गुरु की आई है, सदगुरु की, और इतनी एनर्जी है, तो मैं ये सब बांट देना चाहता हूँ। तो ये चीज, ये तो अभी कुछ नहीं है। अगर मुझे कोई 2 दिन बोलने को बोले ना, मैं 2 दिन बोलता ही रहूं। इतना सारा कुछ बताने को है। तो एक फाइनली मैं एंड करूंगा एक एग्जांपल से। एक्सटर्नल ध्यान और इंटरनल ध्यान का मतलब देखो, अपने पास बैटरी होती है, टॉर्च होती है, टॉर्च। तो टॉर्च, जब भी आप अंधेरे में टॉर्च करते हो तो किसी जगह पे फोकस करते हो ना, करेक्ट, बराबर, फोकस करते हो। तो वो फोकस है ना, वो एक्सटर्नल ध्यान जैसा है। क्या आपको कुछ सीखना है तो आप उसी जगह पे लेके जाओगे ना टॉर्च, अपनी पूरी एनर्जी को, अपना पूरे एफर्ट्स को, तो वो फोकस है। लेकिन उसी टॉर्च को आप अंधेरे में आप सीधा जमीन पर रख दो तो वो फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। तो वो इंटरनल है। जैसे आप इंटरनली आने लोगोगे ना, जर्नी इंटरनली स्टार्ट होने लगी नहीं, आपका भीतर का प्रकाश बाहर की ओर फैलने लगेगा। एंड व्हाट एन एनालॉजी टू एंड, सर। टॉर्च को देखो, टॉर्च, आप ये अनुभव कर लेगा।
अंधेरे में जाके टॉर्च को अनुभव करना, एक पॉइंट करना और बचपन वही में टॉर्च। करते थे सर, हम लोग we used to do this in the childhood. We used to take the torch and aim it at the sky or aim it at the ceiling. Obviously, the radius of that entire light, the penumbra, it was very wide. And when we used to point it to one particular area, the radius was always small. And what an analogy you gave, because yes, सिंपल है, it is very सहज है, simple. एकदम बिल्कुल सिंपल है। हम ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी चीजों, एग्जाम्पलों से हम कितना कुछ समझ सकते हैं, कितनी गहराई है। ये एग्जाम्पल तो कितना मामूली है ना, कि उसके पीछे थीम कितना गहरा है। think about that. Super, sir. To end the session with such a fantastic analogy, I'm sure people who are listening to this are going to feel good and think about it too, because these are the simplest things which everybody would have done in their lives. Right? And it's amazingly great that we started this series, because our Enlightenment series is going to bring a lot of things from you, and we'll keep on discussing. As you said, you had made 4 pages and we have just covered 2 lines, so that means that there are a lot of episodes which are coming in, and our viewers can view the I think it's video, going to listen to the podcast, it's going to everything, be like 100 episode series. which is So many fantastic. things, so many things. Next episode में बात करेंगे. Next episode में बात करेंगे. Perfect, sir. We will speak in the next episode. And for all the viewers, all the listeners, all the readers, we are Edu-Astro, and we do consultations, courses to improve lives. Our consultations are astrological and numerological, and our email ID and website are there on the screen. www.edu-astro.com, and the email ID is contact@edu-astro.com. Please visit our website. There are a lot of amazing things out there, and please visit our YouTube channel, our Facebook, Instagram pages, and you will find amazing info which is going to keep on coming. Stay connected with us for all the above, all the wonderful things which are on the way. And Nilesh sir, thank you very much for joining in today. We are anyways going to have another discussion next week, and this video is going to be available on a weekly basis. The episodes are going to be available on a weekly basis, on podcast, on video, on blogs. So for all the viewers, whosoever wants any particular way of connecting with us, you are there. We all are there, and you can contact us anytime. Thank you so much. Sure. Thank you very much. Take care. Bye bye.